السلام علیکم۔ آ گئی ایک نیا بلاگ لے کے آپ لوگوں کے لیے۔ مجھے نا سچ میں بہت ہمت ہے۔ پیدل چلنا، گھر کا کام، باہر کا کام، ہر روز باہر کا کام، اور ایسے ایسے راستے طے کرنا جہاں اچھے اچھے انسان کی پھونک نکل جائے۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، دور دور تک چاروں طرف جنگل ہی جنگل، لیکن مجھے جانا تھا جہاں وہاں پہ یہ جنگل پڑتا ہے۔ اس جنگل کو پار کرنے کے بعد میں ہی منزل آتی ہے، تو جانا تو پڑے گا، کام ہے، کام کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اور جو لوگ گھر بیٹھے منہ چلا دیتے ہیں نا، وہ دیکھ لو کیسے کیسے راستے طے کرنے پڑتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کی چوک ہوئی تو میں پانی میں، ہے نا، پانی، کیچڑ، گارا سب پار کرنا پڑتا ہے۔ کیا کروں؟ جب آدمی نہیں ہوتا نا کمانے والا اور اکیلی عورت ہوتی ہے، تو اس عورت کو 1000 لوگ بات تو بنا دیں گے، لیکن اس کی محنت، اس کا کام نہیں دکھے گا۔ بس یہ زبان ربڑ کی ہے، اسے کیسے بھی چلا دو۔ لیکن پہلے تو میرا بہت کم جانا تھا باہر، ہے نا، کم جانا تھا، یعنی کہ میں فیلڈ میں، اپنے کام میں تو میں جاتی تھی، لیکن لوگوں میں بہت کم جاتی تھی۔ ان لوگوں میں جو میرے اپنے لوگ ہیں، جو رشتے دار ہیں، جو برادری ہے، جو گاؤں ہیں، وہاں میرا بہت کم جانا ہوتا تھا، کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نہیں گئی۔ اور یہ میں گاؤں کا ہی راستہ طے کر رہی ہوں، یہ میرا ٹول ٹیکس آ گیا گاؤں کے پاس۔ تو میں بتانا چاہوں گی کہ میرا گاؤں بہت کم جانا ہو گیا، اور لوگوں نے اتنی زبان چلائی یہ میرے گاؤں کا راستہ ہے، میں پیدل جا رہی ہوں، اتنی لوگوں نے زبان چلائی کہ میں کیا بتاؤں۔ میں تو چھاتا لے کے سفر کر رہی ہوں، میں پیدل سفر کر رہی ہوں، اور بولنے والے بولتے گئے کچھ بھی، تو پھر کیا سمجھوں اس کو، ہیں؟ وہ بیوقوف ہیں یا میں بیوقوف ہوں؟ اب میں ہوں نہ ہوں مجھے تو نہیں پتہ، آپ لوگ کمنٹ میں بتانا۔ میں اگر ان لوگوں کا، جنہوں نے مجھے کچھ بھی کہا، اگر میں ان لوگوں کا جواب دیتی تو میرے پاس وقت نہیں تھا اپنے بچوں کو دیکھنے کا۔ مجھے لگا کہ بہتر ہے کہ میں کسی کی باتوں پہ نہ جا کے اپنے بچوں کو دیکھوں، اپنے وقت کو دیکھوں، ہے نا۔ میرا وقت اتنا کمزور تھا کہ میں ایک دم اکیلی پڑ گئی، اور ہمت ایک دم بہت کم ہو گئی، اور پریشانی بہت آئی، بہت زیادہ۔ لیکن میری پریشانی نہ دیکھ کر کے اتنا منہ چلایا کہ بس میرا جواب، جو میں جواب دیتی، وہ جواب تو اللہ نے دیا، ہے نا۔ اور ابھی بھی مجھے یقین ہے اللہ پہ کہ میرا تو جواب اللہ دے گا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا، میں نے صبر کرا، لیکن آج کے وقت میں جب میں جاتی ہوں اور جب ان کی کتاب کھلتی ہے نا، تو میں پھر بھی سوچ جاتی ہوں چل اپنے میں کچھ نہ بولوں، کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ جنہوں نے اچھا برا مجھے کہا، انہوں نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا، ہے نا۔ ارے اپنے میں تو دیکھ لیتے کتنے کیڑے پڑ رہے ہیں، اپنے گریبان میں تو جھانک لیتے مجھے تو جب بولتے ہیں۔ لیکن میری پرورش ایسے گھر میں ہوئی کہ میں آج بھی نہیں بولوں گی وہ باتیں، جو باتیں تم نے بولی مجھے، وہ باتیں میں تمہارے لیے آج بھی نہیں بولوں گی۔ میری پرورش ایسے گھر میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی گالی دے رہا تو اس کا جواب گالی دو، نہیں۔ مجھے جو عزت ملتی ہے وہ میری محنت سے ملتی ہے، اور میرے دماغ سے ملتی ہے، اور میرے صبر سے ملتی ہے نا۔ دیکھو میری عزت، میرے اندر ایسا بھائی چارہ ہے۔ دیکھو میں جہاں بیٹھی ہوں، یہ ہندو میری دیدی ہیں، لیکن اپنوں سے زیادہ پیار، محبت، ہے نا۔ اتنی محبت شاید کہیں نہ ملی جتنی مجھے ان لوگوں میں ملتی ہے۔ میں نے پانی میں سے راستہ طے کرا، میں نے کیچڑ میں سے راستہ طے کرا، لیکن اگر مجھے کہیں محبت مل رہی ہے، جو میری دیدی ہیں، یہ ہیں ایک، میں نام نہیں لوں گی، میری دیدی، یہ مجھے اتنا مانتی ہیں، اور جب تک انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ نہیں بلا لیا، جب تک یہ مجھے فون ہی کرتی رہی، تو میں نے کافی بڑا راستہ طے کرا، کافی بڑا راستہ تھا، بہت سفر طے کرا، اور جب میں ان کے گھر پہ پہنچی، ہے نا، تو آج
जो कहते हैं ना, जो गैर तो गैर ही होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। भाई मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती इस बात को। जो वक्त पे साथ दे, जो वक्त पे अपने साथ दे, और जो वक्त पे हमारा अपना है वो अपना है। हाँ, कोई कभी भी साथ ना दे, कोई कभी भी ना बोले, कोई कभी भी मुड़ के ना देखे, अपने तो होते हैं, क्योंकि रिश्ते नहीं ख़त्म होते। अगर हम लोग सब आपस में रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं ना, तो वो कभी खून के रिश्ते मिटते नहीं हैं, है ना। वो दुनिया की ज़बान पर पूरी ज़िंदगी रहेंगे और दुनिया के बाद में भी रहेंगे। खून के रिश्ते तो एक ऐसे होते हैं, इनको तो कोई मिटा ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी को इतना घमंड आ जाए, इतना घमंड आ जाए कि पता नहीं कोई क्या पहाड़ जीत लिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, तो फिर उनका पीछा करा जाए, हैं। जहाँ मुझे जाने के लिए कभी वक्त नहीं मिलता और वो मुझे कहे कि ज़बरदस्ती आती है, तो उन लोगों से तो पीछा छुड़ाया जावे ना। अब ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान के पीछे सबको छोड़ दूँ, सबको तो नहीं छोड़ सकती ना, हैं। जो नहीं कह रहा उसको मैं कैसे बोलूँगी, नहीं बोलूँगी ना। जो कह रहा है उसी के लिए तो थोड़ा सा अपने कदम पीछे कर लूँगी, हैं। अब देखो आप, मैं अपना सफ़र दिखा रही हूँ। किस औरत को इतना सफ़र करना अच्छा लगेगा, किस औरत को बारिश में चलना अच्छा लगेगा, किस औरत को कीचड़ में निकलना अच्छा लगेगा। सबको अपने घर में आराम अच्छा लगता है ना, हैं। लेकिन मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि दोपहर के 12 बज रहे हों, क्या है 2 बज रहे हों, अगर मुझे काम है, हैं, और मुझे निकलना है और यहाँ कीचड़ है, मैं फिर भी उस कीचड़ में से रास्ता देख के निकल जाऊँगी कि कैसे मुझे बचना है, मैं बच के ही निकल जाती हूँ। लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वो लोग मुझे कितनी इज़्ज़त देते हैं, उन लोगों की नज़र में मैं क्या हूँ, ये तो अल्लाह को पता, उन लोगों को पता और मुझे पता है। ऐसा नहीं है उन लोगों से मैं कहती हूँ, उन लोगों को खुद पता है जहाँ मैं जा रही हूँ कि हाँ भाई कितनी मेहनत करती है मैडम। लेकिन सब करते हैं अपने अपने लिए मेहनत, किसी की किसी तरह मेहनत है, किसी की किसी तरह मेहनत है ना। किसी की अपने लोगों को अपने घर में दिख जाती है, लेकिन मेरी मेहनत को दुनिया देख रही है, दुनिया, है ना। ऐसा नहीं है पीछे कुछ भी मुंह चला दो, हम महान बन गए मुंह चला के, ऐसे नहीं होता। अगर कुछ किसी के लिए बोलना है ना, सामने बोल के देखो, तब पता चले। मुंह नीचे का नीचे रह जाएगा, ऊपर भी नहीं उठेगा, समझे। और मैं देखूंगी अब कल जो मुंह लटकाया ना नीचे को, ये कल की बात है, ज़्यादा पहली नहीं है। मैं देखूंगी ये कब तक लटकेगा और कब तुम्हें काम नहीं पड़ेगा, समझे। मैं तो दूर से ही नज़र देख के बता देती हूँ, एक नज़र में ही, कि हाँ इसका मुंह क्यों बन रहा है ना। ये मुंह बनाना जब अच्छा लगता है, जब इतना इनकार कर लो, इतना इनकार कर लो, इस मुंह को जब बनाओ, जब बिल्कुल ये फाइनल कर लो कि हाँ हमें इसका फ़ायदा उठाना ही नहीं है ना। फ़ायदा तो इतना उठाओ कि वो क्या देख रही है, जो करना है कर लो, मैं ना देख रही, अल्लाह देख रहा, समझे। और मैंने जो कुछ भी वीडियो में कहा ना, उसको पीछे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो वीडियो में बोल रही हूँ तो सारी दुनिया देख रही है, सुन रही है, लेकिन अब पीछे इसे तड़ोड़ मड़ोड़ के कुछ भी कहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सामने कोई कहे तो मैं जवाब दूँ, है ना, कि ये क्या है वजह। मुझे पता है ना, मुझे कितना सताया गया, मेरा गला कितना काटा गया, मुझे पता ना, है ना। मुझ पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए, मुझे पता ना। सामने बोले तो पता चले, पीछे तो गीदड़ तो पीछे ही बोलते हैं, गीदड़ सामने नहीं आते, सामने आते हैं शेर। और शेर सब नहीं होते, शेर तो शेर ही होता है ना। गीदड़ तो छुपते फिरें, अपना टाइम पास करते फिरें, करो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन सच्चाई तो सामने आ जाएगी, और कौन गलत है कौन सही है वो भी सामने आ जाएगी। मेरी हिम्मत, और मैंने हिम्मत तो इसलिए करी ना, मैंने हिम्मत इसलिए करी कि मुझे पता था, मैंने ये बच्चे 9 महीने पेट में रखे, मैं माँ हूँ, मुझे ये तो पता था। लेकिन मेरे अंदर ये भी शर्म थी कि हाँ
मैं इन बच्चों को पाल लूँगी ना, सबकी सुन के, सब कुछ सहन करके, सबकी बातों का जवाब ना दे के, तो मुझे ये भी पता था कि बहुत लोगों की इज्जत है ना। मैं इन्हें दहेज में न लाई, मैं इन 5 बच्चों को दहेज में न लाई, मैंने तंगी में ही पैदा करे। ये मैंने इतनी गरीबी में अल्लाह ने ये मुझे बच्चे दिए, और मैंने वो गरीबी आज तक नहीं छोड़ी। और अल्लाह ने मुझे इतना हिम्मत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, और इतना अल्लाह ने मुझे मालदार कर दिया कि मैं तो शायद इतनी मालदार हो गई, जिसको अल्लाह ने 5 बच्चे दे दिए, 4 बेटी और 1 बेटा। उसको क्या कमी है बताओ, उसको क्या कमी है। आज मुझे जितने भी नेता लोग जानते हैं, जितने भी अधिकारी जानते हैं, जितना भी प्रशासन जानता है, वो मेरे बच्चों की मेहनत से जानता है। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों की मेहनत, और मेरे बच्चों की मेहनत से मुझे वो इज़्ज़त मिली कि शायद तुम लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये होता क्या है। बस तुम्हें तो यूँ ही पता है कि गले में मेडल पड़ा है। इस मेडल की वैल्यू और इस मेडल के पीछे की मेहनत आप लोगों को नहीं पता, कभी नहीं पता। और ये जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ ना, ये मेरा सफ़र है। जो मैं बोल रही हूँ ना, ये तो मैं बहुत कीमती वक्त निकाल के बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरा वीडियो बना हुआ ना, ये मेरा सफ़र है, यही मेरा सफ़र है, ठीक है। यही मेरा वक्त है, यही मेरा सफ़र है, यही मेरी मेहनत है, और यही मेरी मोहब्बत है। लेकिन मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलूँगी। जो बोल रही हूँ सबके सामने बोल रही हूँ, पीछे नहीं बोलूँगी। चुगली तो मुझे आती नहीं। चुगली जो करती हैं ना, वो करती हैं भड़वी। जो भड़वी होती हैं ना, दुनिया का खाती फिरती हैं, जिनके अंदर हया शर्म नहीं होती है, जिनके अंदर तहज़ीब नहीं होती है, चुगली तो करती हैं वो भड़वी, है ना। लेकिन मैं चुगली तो करूँगी नहीं। मुझे तो अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी और इतना मजबूत बना दिया कि मैं जो बोलूँगी वो सबके सामने बोलूँगी। और अपने को मैं समझा रही हूँ कि बस मेरे साथ में जो भी होगा, कुछ भी हो, मैं हिम्मत इतनी करूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान ना खुलवाए उनके लिए, वरना मुंडी नीचे ही गड़ जाएगी, है ना। मुंडी नीचे ही गड़ जाएगी, ऊपर को नज़र ना होने की है। अकेले अकेले में तो एक को दबा लो, जब 4 लोग हों ना, और 4 लोगों को सामने बोला जाए और सबकी सुनी जाए, पता जब चलता है कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तो छोटी हूँ ना, मैं छोटी हूँ, मैं उसी हिसाब से हूँ। मैं नहीं बोल रही, मैं चुगली नहीं कर रही, नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तुम सब लोग बैठ के चुगली करते हो ना, जहाँ जहाँ जो कहते हो, 2 सेकंड के अंदर मेरे पास आ जाती है वो बात। 2 सेकंड के अंदर अल्लाह ने मुझे वो रुतबा दिया, अल्लाह ने मुझे वो बनाया कि बहुत टाइम नहीं लगता। सिर्फ 2 मिनट, ऐसे जैसे परछाई निकल जाती है ना, परछाई की तरह 2 मिनट में वो सारी बातें मेरे पास आ जाती हैं, और मैं सब्र करके बैठ जाती हूँ। वरना कभी कभी तो सोचती हूँ फ़ोन करके पूछूँ कि ऐसे क्यों बोला, लेकिन मैं सब्र करके बैठ जाती हूँ। अब वो सारी बातें ना कह के, और मैं जो आज बोल रही हूँ ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें ही इसमें बोलूँ। समझने वाला समझ जाएगा, जिसने जो कहा है ना वो खुद समझ जाएगी, और ना समझे मत समझो, भाड़ में जाए, ठीक है। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता, ठीक है। कोई ना मेरे कोई खाने को आ रहा और ना मैं किसी के जा रही, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कम से कम मैं किसी की चुगली तो ना करती, और करी हैं तो सामने बताओ, सामने बताओ कि तूने वहाँ ये कही है। अगर मैंने कुछ कही है ना, तो हाँ मैं कह दूँगी, हाँ ये बात ऐसे नहीं थी, मेरे सामने ये बात आई, उस बात पे मैंने ये जवाब दिया, मैं बता दूँगी। मैं ये ना कहने क्यों कि हाँ मैंने ना कही ये बात, ऐसे बात नहीं, मैं मुँह देखी बात ना कहती हूँ, है ना। मुँह देखी जरा सी कभी आज तक ना करी है मैंने, कि तेरे मुंह पे तेरी सी और उसके मुंह पे उसकी सी। और सुनो, जो ये से सोचते हो ना, एक जगह ठिया तो चाहिए ही, कभी हमारे ना आती है उसके चली जा, कभी उसके चली जा हमारे ना आती है।
अपने घर रखो अपने पास, समझ गए? अपने घर के ऊपर कूद रहे हो, अपने घर के ऊपर कूद रहे हो। मेरा घर भी तुमने ही छीना, मेरा घर भी तुम लोगों ने ही छीना, और घर के ऊपर मत कूदना, समझे? अब देखो मैं कितनी तुम्हारे घर आ रही हूँ। और अपने घरों को अपने पास रखो, अपनी जेब में रख लो अपने घरों को। अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हारे घर आना बंद कर दूँगी तो अल्लाह मुझे घर दे देगा बहुत जल्दी। मेरी तो भूल थी जो मैं तुम्हारे घर जा रही। अगर अब से पहले आना जाना मैं बंद कर लेती ना तो शायद अब तक मेरा घर होता, अब तक मेरा घर होता गाँव में। मैंने तो तुम्हारे घर ही जाके गलती कर ली। मुझे ये पता नहीं था कि तुम अपने घरों के ताने दोगी, कि अगर 2 कदम को भी मैं 2 मिनट को भी तुम्हारे घर चली जाऊँ तो घरों के ताने दोगी। अपने घरों को अपनी जेब में रख लो, ठीक है? लोग लगा लो, कोई आवे ना। और सुन, तू क्या बोल रहा? गाँव में आवे, हमें तो शर्म लगे। मैं तो बुर्का ना पहनती हूँ, यूँ शर्म लगे। जब तुम्हारी घरवाली जो ना, बस अब इससे आगे को ना बोल रही मैं, समझ जाओ। इतनी घटिया ना हूँ। सामने बोलो ना तो फिर बताऊँ, बताना नहीं, प्रूफ दूँ, कसम खुदा की प्रूफ। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, प्रूफ बताऊँ कि क्या क्या है, समझे? लेकिन सामने तो बोल जाओ, पीछे बोलने से क्या, सामने बोलो ना, सामने बोलो। प्रूफ रख रखा है, प्रूफ है मेरे पास सबका। जो मुझे बोलता है ना, मतलब सब में तो सब आ जाते हैं, सब नहीं, जो मुझे बोलते हैं उनका चिट्ठा है मेरे पास। दिल रोता है, दिल। मैंने किसी का बुरा ना करा, मैंने तुम लोगों का फ़ायदा ही करा, ठीक है? तुम करे जाओ जितनी चुगली करो, और जितना मुंह मोड़ो इतना मोड़ लो, मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम तो अगल बगल में झांकते भी फिरो इधर उधर। उसकी सी आवाज़ लग रही है तो उसके घर झांक लिया, उसकी सी आवाज़ लग रही है तो उधर देख लिया। मेरे घर से निकली तो न्यू देखूं किसके घर जा रही है। तुम तो ऐसे झांकती भी फिरो। मैं ना झांकती, सिर का बाल टूटा वो कूड़ी पे जाए नाली में जाए, मैं नहीं झांकती। मैं मुड़ के नहीं देखती, गया तो गया, गई तो गई, कूड़ा गया तो गया, समझे? अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे इतना दिमाग दिया है कि मैं कहीं भी कुछ भी कर लूँगी, कहीं भी, कहीं भी। कहीं का मतलब समझो तुम लोगों के आगे। अल्लाह से 24 घंटे मांगती हूँ, अल्लाह रोज़ी देने वाला है सबको। अगर ये नसीब किसी के हाथ में होता ना तो इस नसीब को जो ना ऐसा चक्की में पीसते लोग, ऐसा चक्की में पीसते कि एक एक को तड़फाते। वो तो बंदों के हाथ में कुछ नहीं है जब ये धरती पे पैर नहीं है, जब ये हाल है ना। अगर बंदों के हाथ में कुछ होता ना, जितना बंदों के हाथ में है वहाँ तो खूब ऐसी करवा लें, और जो बंदों के हाथ में नहीं है ना वहाँ वो बंदे फड़फड़ाते फिर हैं, वो मोहताज हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। है तो सारी पावर अल्लाह के हाथ में, है ना, सारी पावर अल्लाह के हाथ में। और जितने जिसके रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों का तो बिरादरी में पता चल गया, ये रिश्तों का तो बिरादरी में पता चल गया किसका कितना रिश्ता। मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और अल्लाह ने मुझे ऐसा रुतबा दिया, अल्लाह ने मुझे ऐसा रुतबा दिया कि मैंने यही नहीं बताया कि मैं वो हूँ, खुद जान गए सब लोग कि तुम तो वो हो, समझे? झुक गई मुंडी, बस झुक गई मुंडी, हैं? सोचो, करो सिर में दर्द अपने। कुटुंब किसी का भी बड़ा हो, कुटुंब मेरा भी कम नहीं है ना। कुनबा किसी का कितना ही भी बड़ा हो, फैमिली किसी की कितनी भी बड़ी हो, फैमिली मेरी भी छोटी नहीं है, कुनबा मेरा भी छोटा नहीं है। मेरा तो कुनबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा शायद तुम लोगों का हो भी ना, मेरा तो इतना बड़ा है, समझे? अल्लाह मुझे देगा घर, अब इतना बनाऊंगी कि मेरे घर में मैं 4 घरों में अपनी फैमिली को बिठा लूँ। मेरी इतनी फैमिली है, मैं 4 घरों में अपनी फैमिली को बिठा लूँ। जब घर छोटे रह जाएंगे, मेरी इतनी फैमिली हो गई है ना। बस बहुत कह लिया और बात कुछ ना कही, समझने वाले समझ जाएंगे
इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत बोल लिया। पेट दुखता है बहुत ज़्यादा अफसोस होता है मुझे, बहुत ज़्यादा, समझे। लेकिन बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। और सारी बातें समझने के लिए जो इस वीडियो को देखेगा, जहाँ मैं बोल रही हूँ, जहाँ के लिए मैं बोल रही हूँ, वे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मुझे समझा दिया कि बंदी तू मत बोल, अगर तू बोलेगी तो फिर बदला कौन लेगा? मैं तो जब बदला लूँगा ना, जब तू नहीं बोलेगी। तो अल्लाह ताला ने तो मुझे समझा दिया, इसलिए मैंने कोई शब्द ऐसा कहा ही नहीं जो किसी को बुरा लगे। मैंने तो बस ऐसे बोला है कि एहसास हो, बस। मैंने कोई बात क्लियर नहीं करी, समझे। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला मत समझो, कोई बात नहीं। लेकिन जितना इसमें बोल दिया, ये सब कुछ बोल दिया। आगे के लिए मैं अपने काम में बहुत बिज़ी हूँ और इंशाअल्लाह बस अब कुछ ना कह के मैं अब आ रही हूँ अपने काम पे। मशीन रख रखी है, कपड़ों की सिलाई कर रही हूँ। सोचा बहुत कीमती वक्त निकाल के वीडियो बना लूँ। और ये जितना भी वीडियो शूट करा है ना मैंने, जितना भी, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही टाइम नहीं है किसी के पास, ऐसे ही टाइम नहीं निकाला जाता। ये भी एक काम है, ये एक इतना कीमती काम है कि इसके लिए भी बहुत कीमती वक्त निकालना पड़ता है ना। अगर मैं कहीं बैठ जाऊँ, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ। बहुत कीमती, जो मेरा मेन ज़रूरी काम है ना, उसी का हिस्सा है ये वीडियो बनाना भी, है ना। क्योंकि जो मेरी सोशल मीडिया पे पब्लिक ने मुझे सपोर्ट करा है, वो भी तो मेरी फैमिली है। अब तो मेरी वही फैमिली है, सब अपनी फैमिली से अलग सब मिला के अब मेरी पूरी इतनी बड़ी फैमिली हो गई, बहुत ज़्यादा है। तो इस फैमिली को तो मैं नहीं छोड़ूंगी ना। मेरी सोशल मीडिया जो फैमिली है वो मुझे इतना प्यार दे रही है, इतना प्यार दे रही है, बताओ कि सोनू सूद, थैंक यू तुम्हारा भी। आपने इस ऐप को बनाया और मैंने तुम्हारे ऐप को चुना सर। और उस ऐप पे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से 1000 लोग देख लेंगे। एकदम से मुझे 1000 लोगों ने इतना प्यार दिया आपके ऐप पे, उसके लिए भी सर थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे सोनू सर, जब आपके ऐप को मैंने डाउनलोड करा और आपके ऐप को देखा मैंने कि हाँ मैं इस पे काम करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे वो फैमिली मिली, शायद मुझे सपना सा लगता है कि कितने लोग मुझे उस पे प्यार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब देखती हूँ। और जब कमेंट देखती हूँ ना, सोनू सर आपके ऐप की जो फैमिली है ना, जब उनके कमेंट देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है शायद 30-40 देशों के लोग आपके ऐप पे जुड़े हुए हैं और ज़्यादा ही। लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे ही लोग पढ़े लिखे जुड़े हैं। इतने अच्छे अच्छे कमेंट, इतने अच्छे अच्छे मतलब सपोर्ट करते हैं। इतने बड़े बड़े और इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं। शायद मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ, कौन सी दुनिया में हूँ। बहुत अच्छा लगता है सर, आपने जो ऐप बनाया, थैंक यू उसके लिए। और अल्लाह ने मुझे इतना दिमाग दिया, मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे इतना सोचने का वक्त दिया कि मैंने सोचा और आपका ऐप को इस्तेमाल करा। पता नहीं, अभी तो उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ कूपन मिले हैं सर, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद उसमें भी मुझे बहुत कुछ मिलेगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो लोग बोलते हैं वीडियो बना रही है, अरे बोलते रहो, मेरे पे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं वीडियो ही तो बना रही हूँ, मुझे बताओ कौन नहीं बनाता है। तुम कुछ भी करो सब अच्छा, मैं जो करूँ वो सब बुरा। तुम्हारे लिए तो बुरा, मेरे लिए तो बुरा नहीं है ना, मेरे लिए तो अच्छा है ना। बस, तो बहुत हो गया आज के लिए, बस अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। मुझे काम भी बहुत है, ठीक है। मेरे अंदर थोड़ी सी देर को गुस्सा आता है, फिर मैं शांत हो जाती हूँ। मैं बकती भौंकती नहीं हूँ, मैं गाली गुफ्तार नहीं करती, मैं तू तड़ाक नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरी परवरिश नहीं है ऐसी, है ना। और जो लोग पीछे गुफ्तगू कर रहे हैं ना,
अरे उनसे हमारी बोल चाल नहीं है, तुम ऐसे ऐसे कहो। अच्छा वाह, अबे 4 दिन के बच्चों, औकात में रहो। सारी बात आ रही हैं यहीं, जहाँ बैठ के बोल रहे हो ना, यहीं आ रही हैं सारी बातें। कोई बात नहीं, चलो खैर, अल्लाह आपको हिदायत दे। क्या ही बोलूँ, सोचूँ तो हूँ बहुत कुछ बोलने को, लेकिन बस ज़बान रुक जाती है। ये क्यों रुकती है, क्यों रुकती है? मेरी परवरिश नहीं है, और जहाँ मैं बैठती हूँ ना वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ज़बान रुक जाती है। बस इसलिए ज़बान रुक जाती है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो उन्हीं लोगों का असर है। बस खैर, आप लोगों को मैंने काम दे दिया। वीडियो को पूरा देखो और पूरा सुनो, और इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, शायद आप सब लोग मेरा दर्द सुन लें और महसूस करें। मैंने जो दर्द झेले हैं ना, और जो मुझे लोगों ने दर्द दिए हैं, और जो मुझे मिले हैं, और जो मैंने सहन किया है, एक दिन हो जाएगा महसूस, होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, मंच पे होगा, सबके सामने होगा। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह पे उम्मीद है। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, अल्लाह चाहेगा तो सब सामने आ जाएगा, है ना। और कहने को तो बहुत कुछ है, पर अब नहीं बोल रही। कहती कहती अपनी ज़बान को रोक रही हूँ, अब नहीं बोलना। मुझे अल्लाह ने, मैं पढ़ी लिखी ज़रूर नहीं हूँ, पर अल्लाह ने मुझे इतना मास्टर बना दिया कि अपना घर चला दिया मेहनत करते करते। मैं अगर एक अपर वाला सूट बना दूँ तो 350 रुपये लेती हूँ। एक सूट तैयार करने के 350 रुपये मैं लेती हूँ, और जो सादा सूट बनाती हूँ उसके मैं 200 भी ले लेती हूँ और 250 भी ले लेती हूँ। मैं कोई आम पब्लिक के कपड़े नहीं बनाती, नहीं तैयार करती। मैं ऐसी गली मोहल्लों के नहीं तैयार करती। मेरी इतनी दीदी हैं, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, जो लोग मुझे जानते हैं वो सब, जितनी भी मेरी दीदी हैं वो सब मेरे से तैयार कराती हैं। क्या है अफ़गानी शलवार हो, क्या है पटियाला शलवार हो, क्या है साड़ी में फॉल लगाना हो, कुछ भी उनका काम पड़े, क्या है कमीज़ में बटन लगाने हों, वो सब मैं ही करती हूँ। और मैं पैसे नहीं बताती, बिना बताए वो मुझे मेरी मेहनत जितनी उनको लगती है ना कि हाँ इतनी मेहनत करी है, वो ख़ुद देती हैं मुझे पैसे। उसी से मैं अपना घर चलाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो पैसे तो मुझे मेरी मेहनत के देती हैं जो मेरी दीदी हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्यार भी मुझे इतना मिलता है, सच में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो होता है कि कुछ दीदी तो ऐसी हैं कि मैं उनके कपड़े बना दिए और फिर 6 महीने तक कुछ नहीं उनको कपड़े बनवाने, तो बीच बीच में याद करेंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम हमारे कपड़े सियोगी जभी याद करेंगे। अब याद आ रही थी, आ जाओ होने को। तो बस बहुत अच्छा लगता है जब इतना प्यार मिलता है, कि अगर इतना प्यार मिले कि खून के अलग रिश्ते हैं और वो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और 15 दिन हो गए आई नहीं तुम, तो 1 महीना हो गया, बहुत याद आ रही है। आ जाती बाजी, घूम जाओ दीदी, घूम जाओ। तो मैं ना जाऊं तो भी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब सुनने को तो मिलता है कम से कम ऐसा। देखो अपनी फैमिली जो होती है वो तो अपनी होती है, अपनी की तो बात ही अलग है, लेकिन जब बाहर भी इतना प्यार मिले तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त बाहर ही बैठी रहती हूँ, मुझे तो वक्त ही नहीं है, बहुत कम वक्त मिलता मुझे जाने का, कि काम ही इतना मुझे। कभी कभी तो रात को तो मैं परमानेंट ही, मेरी नींद सी भी ऐसी हो गई कि 12 बजे तक जागती हूँ, 12 बजे तक काम करती हूँ, 12 बजे के बाद में ही जब नींद आती है अपने आप आती है। तो मुझे तो वक्त ही इतना कम मिलता है कि रात को भी मुझे 12 बजे तक काम करना पड़ता है। तो किसके पास वक्त रखा है यार, प्यार मोहब्बत से जी ले इंसान। किसके पास, किसके लिए टाइम है? सब अपने अपने काम में मस्त हैं, सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। खैर आज बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, इसलिए बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को
محسوس کرو یا سمجھو، میں نے برا کسی کو نہیں کہا ہے، لیکن مجھے اتنا برا کہا ہے بہت زیادہ، لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی برا نہیں کہا، بس ایسا بولا ہے کہ انہیں کچھ محسوس ہو کہ ہاں ہم نے کہا ہے۔ ارے اپنے لوگوں کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ دیکھو تو پردہ ڈالو، لیکن تم نے کچھ دیکھا نہیں پھر بھی تم نے بک بک کری، اور بنا دیکھے کسی نے کچھ کہا ہے نا تو فالش تو اسی کے منہ پہ پڑے گی۔ بولنے سے کیا جا رہا ہے؟ اپنی نظروں سے تم نے کچھ نہیں دیکھا نا، ہے نا، لیکن فالش پڑے گی اس کے منہ پہ جس نے اپنی نظروں سے دیکھا نہیں اور بولا کچھ بھی۔ اگر کوئی کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سفر کر لے تو وہ غلط تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ میں نے کیا، میں تو ابھی بھی کر لیتی ہوں، کہیں جا رہی ہوں، ہاں بھیا ذرا مجھے یہاں تک چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ موٹر سائیکل پہ ہی تو بندہ دیکھا، اس کے الگ تو کچھ نہیں دیکھا نا۔ اگر اس کے الگ کچھ بولا تو ان کے منہ پہ فالش پڑے گی، کیونکہ اگر میں غلط کر رہی ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کا کچھ نہیں دیکھا، لیکن پتہ سب ہے۔ میں نے دیکھا کچھ نہیں ہے، پتہ سب ہے، اسی لیے میں کلیئر نہیں کر رہی ہوں، مجھے پتہ سب ہے، لیکن میں بولوں گی نہیں، کیونکہ وہ شبد بولنے کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جو شبد آپ نے بول لیے نا وہ شبد بولنے کے نہیں ہوتے، اس لیے میں نہیں بولوں گی۔ آپ لوگوں نے بول لیا، اللہ آپ کو توفیق دے، ٹھیک ہے۔ بس پورا ویڈیو سنو اور دیکھو، ذرا سا بھی اسکرپ مت کرنا۔ نیکسٹ بلاگ لے کے آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا۔ اس ویڈیو کو اتنا سپورٹ کرو، اتنا سپورٹ کرو، اتنا سپورٹ کرو، اتنا شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، اور سہانا جی یوٹیوبر کو سپورٹ کرو، سب لائک شیئر کمنٹ کرو، میرے چینل کو سبسکرائب کرو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ میرا بلاگ بہت چلے گا۔ آپ لوگ اسے بھر بھر کے پیار دے دو۔ نیکسٹ بلاگ لاؤں گی بہت اچھا، آپ لوگ انتظار کریں گے کہ کب آ رہا ہے نیکسٹ بلاگ، جو آپ لوگ دیکھیں گے، اور سبھی لوگوں کا مجھے بہت پیار مل رہا ہے۔ مجھے اتنی امید نہیں تھی جتنا مجھے پیار مل رہا ہے، اور اسی امید کے ساتھ میں آگے کام کرتی رہوں گی، اور ایسے ہی ویڈیو بناتی رہوں گی آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ کرو اور میرے بلاگ کو دیکھو، اور جو بولنا ہے بولو، آپ بول سکتے ہو، چھوٹ ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بس آج کے لیے بہت بڑا بلاگ ہو گیا، تو بس یہی بولوں گی، شیئر لائک کمنٹ، آپ سب اچھے رہیں، اور میں تو سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں سب اچھے رہیں۔ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، میں کسی کو بد دعا نہیں دے رہی، اگر میں بول رہی ہوں کچھ تو یہ بھی بد دعا نہیں ہے، میں تو صرف یہ محسوس کرا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسا بولا، لیکن میں بد دعا نہیں دے رہی۔ میں کون ہوتی ہوں؟ بدلہ تو اللہ لیتا ہے، میں تھوڑی نہ لوں گی، میرے بس کی کیا ہے، میرے کیا ہاتھ میں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرے میں تو ذرا بھی طاقت نہیں ہے، ذرا سی بھی ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ بس میں تو اپنے جس راستے پہ چل رہی ہوں بس چل رہی ہوں، کر رہی ہوں محنت۔ اب سوچ رہی ہوں بس جولائی تک جتنا کام میرا فیلڈ کا تھا وہ سب میرا فائنل ہو کے اس کے بعد میں کام چینج کر رہی ہوں، اور جو کام چینج کروں گی اس کو آپ کے سامنے لے کے آؤں گی جولائی کے بعد میں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ دیکھو قسمت آزماؤں گی، آگے محنت کروں گی، کام بدل دوں گی، دیکھو آگے ہوتا کیا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ حافظ۔